So here comes the most important question, beneficial for you. तो please German सीख के आए. South western part of Germany, and तो this can go up to 500 to 600 euros. और मेरे को रोड भी पकड़ के हाथ क्रॉस करवाया. Hi everyone, welcome and welcome back to another video. So you might got the idea कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है. So this video is going to be a little bit personal. I'm going to share some information about myself in this video. So basically I am going to answer all those frequent questions which have been asked to me in my comment section and my Instagram DMs. तो मैं कोशिश करूँगी कि I will answer all of them. So yeah, let's start the video. सबसे पहले I am going to introduce myself. So my name is Neha and I am from India but currently living in Germany. And I have completed my bachelor's from West Bengal, India. I did BTech in Information Technology. So I am 2022 batch pass out. After completing my bachelor's, I worked as a junior software engineer in Cognizant for almost 2 years. So my office location was Bangalore. I lived in Bangalore for 2 years. And then after 2 years, I decided to move to Germany for pursuing my master degree. So in September 2024, I moved to Germany. So the first question which have been asked is like, what is my course name? तो मेरे कोर्स का नाम है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम एंड अभी तक मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है एंड फ्रॉम अप्रैल like April is coming in 2 days, so the second semester is going to start from like second week of April, and my university name is University of Siegen. So the next question is like what is my city name and where am I staying right now? So the name of my city is Siegen. In English you can say it as Siegen or Siegen. The spelling is Siegen, which is basically in the southwestern part of Germany, and the state name is Nordrhein-Westfalen. So I am staying here right now. It is like small city, not big as Frankfurt and Berlin, but this is really beautiful and peaceful city to live in. So moving towards the next question. So the next question is German language required or important if you want to stay in Germany? So the answer is absolutely yes. You have to learn German if you want to stay in Germany for long period of time, because यहाँ पे people will prioritize you if you know their language, and वो आपसे थोड़ा जल्दी impress भी हो जाते हैं अगर आप if you try to speak German little bit. और यहाँ पे हर चीज़ में जर्मन देखते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट्स और एनी अदर शॉप्स दे विल स्पीक टू यू इन जर्मन, क्योंकि दे प्रायोरिटाइज जर्मन मोर देन इंग्लिश. दे डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश इफ़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड. और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, जो लोग थोड़े पुराने होते हैं, लाइक ओल्ड पीपल्स रियली डोंट नो इंग्लिश. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिन्हें आती भी है फिर भी वो लोग बोलना नहीं चाहते, क्योंकि दे वैल्यू देयर लैंग्वेज एंड दे वांट यू टू लाइक लर्न देयर लैंग्वेज इफ़ यू आर स्टेइंग इन देयर कंट्री. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न लैंग्वेज. और यहाँ आने से पहले आई विल सजेस्ट यू टू एटलीस्ट लर्न A1 लेवल ऑफ जर्मन, क्योंकि लर्न एज एन आप पढ़ सकते हैं पर आपको बोलना तभी आएगा जब यहाँ पे आके आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे. बिना इंटरेक्शन के यू कांट स्पीक एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली. तो आप फिर भी यू कैन जस्ट गो थ्रू द A1.1 और A1.2 जर्मन कोर्स. तो आपको थोड़ा तो आइडिया मिल जाएगा कि हाउ पीपल स्पीक हियर. तो बेसिक आइडिया लेके आना. Currently, I am also trying to learn German as much as possible. So yes, the answer is yes, you have to learn German, and अगर आपको बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे रहना है तो. But I am not saying कि you will not able to survive here without German, because most probably your course will be in English, and आपके जो friends बनेंगे वो भी English या हिंदी बोलते होंगे. तो it's not like you cannot survive here, but अगर आपको German आती होगी the life will be like very easy for you, क्योंकि लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे. इट्स लाइक आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे हर चीज़ में, वेदर यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट्स और कैफेज. पीपल हियर इन रेस्टोरेंट्स एंड कैफे स्पीक जर्मन, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें जर्मन में आंसर दें.
तो मेरे हिसाब से यू शुड लर्न जर्मन व्हेन यू आर कमिंग हियर एंड प्लानिंग टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग टाइम। और हाँ, आपको अगर जर्मन आती होगी तो आपको जॉब में भी ज़्यादा इजी होगा, मतलब आपको जॉब में भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको पहले रखेंगे दूसरों से, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज पता है। सो माय सजेशन विल बी लाइक कि आप वहाँ अपने कंट्री से थोड़ी बहुत जर्मन सीख के आएँ। सो आई एम गोना पुट सम यूट्यूब वीडियो लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आप जाना वहाँ पे चेक करना। आई गेस यू विल फाइंड दैट हेल्पफुल, so please go and check that video. So here comes the most important question, और जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि what is the cost of living for a student in Germany. तो it really depends on it really depends कि आप खर्चा कैसे करते हैं, and from city to city, कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं या छोटी सिटी में रहते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पर आई एम गोना डिवाइड द एक्सपेंसेस इन 4 सेक्शंस, जिसमें कि सबसे पहले आता है एक बहुत बड़ा सेक्शन जिसमें आपके एक्सपेंसेस के मोर देन हाफ ऑफ योर एक्सपेंसेस उसमें जाता है, जो कि है रेंट। तो जर्मनी में अपार्टमेंट या फिर स्टूडेंट डॉर्म्स काफ़ी महंगे होते हैं, एंड अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। तो रेंट में आपका बहुत सारा खर्चा जाता है। उसके बाद सेकेंड है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, तो इट्स अराउंड 145 फॉर 1 person. You have to pay like 145 euros for a month for health insurance. And third is like your monthly groceries. तो उसके लिए आपके एक्सपेंसेस जाते हैं, एंड इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना खर्चा करता है और किसको कितनी सामान लेनी पड़ती है मंथ एंड तक। एंड द फोर्थ वन इज लाइक मिसलेनियस खर्चे, जो आपको कभी कहीं जाना है, खाना है, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, वैसे खर्चे। तो आई एम गोना टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि मेरा रेंट कितना लगता है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस में कितना जाता है, और मेरा ओवरऑल मंथली बजट कितना होता है, कितना खर्चा होता है, और एक्सपेंसेस कितने होते हैं मेरे। तो मेरा रेंट है 400 यूरोज। सो आई पे 400 यूरोज फॉर 1 स्टूडियो अपार्टमेंट। और हाँ, क्योंकि मैं एक छोटी सिटी में रहती हूँ, तो मेरा यहाँ पे 400 यूरोज में आई एम लिविंग इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट। पर अगर आप किसी बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, जैसे कि फ्रैंकफर्ट, बर्लिन और हैम्बर्ग, तो आपको और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो दिस कैन गो अप टू 500 to 600 यूरोज। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन लाइक सिटी टू सिटी। क्योंकि मेरी सिटी छोटी है तो इट्स लाइक 400 यूरोज, एंड आई पे 145 यूरोज फॉर माई हेल्थ इंश्योरेंस। And the third one is grocery. I pay around 120 to 150 euros for a month for grocery, but it again depends from person to person कि आप कैसे खर्चा करते हैं ग्रोसरीज पे, और आप कितना घर में खाते हैं या बाहर खाते हैं। तो ये भी इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके खर्चे कितने हैं। तो इट रियली डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड अदर मिसलेनियस आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो मेरा मंथली खर्चा अराउंड 600 यूरोज हो जाता है। तो येस, फॉर अ स्मॉलर सिटी लाइक ज़ीगेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम आई डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब्स राइट नाउ? सो द आंसर इज़ नो, आई एम नॉट डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब राइट नाउ। ऐसा नहीं है कि मैंने अप्लाई नहीं किया है, मैंने बहुत सारे वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था एक्चुअली। अभी मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तब से मैंने कुछ अप्लाई नहीं करा है। तो बट मुझे अभी तक कोई कॉल आई नहीं है। तो येस, आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब्स राइट नाउ। और रही बात और जॉब्स की, तो मैंने उतनी ज़्यादा और जॉब्स अप्लाई नहीं करी हैं, बस थोड़ी बहुत करी है जिसमें जर्मन स्किल्स रिक्वायर्ड थी, तो वो बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे जर्मन नहीं आती है और मैं इतना कम्युनिकेट नहीं कर सकती जर्मन में। तो इसलिए मैंने अभी तक कोई और जॉब भी नहीं करी है। बट अगेन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग इन और जॉब्स एंड वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स ऑल्सो। तो देखते हैं कि मुझे कोई जॉब मिलती है या नहीं, एंड आई होपफुली आई विल गेट इट विद इन अ मंथ। या सो देन आई विल डू इट। पर अभी के लिए आई एम नॉट डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब। सो लाइक जर्मन भी ज़रूरी है पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए, और जॉब्स के लिए भी, और वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स के लिए भी बहुत जगह जर्मन मांगते हैं। आपको अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे भी अप्लाई करते हैं, स्टिल आपसे जर्मन मांगते हैं, क्योंकि
दे वॉन्ट यू टू स्पीक एंड कम्युनिकेट। को थोड़ी बहुत जर्मन आएगी तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज जर्मन सीख के आए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट वियर्ड कि जर्मन्स कैसे होते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि जर्मन्स आर वेरी रूड एंड जर्मन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो मेरा भी एक माइंडसेट बन गया था ऐसा, बट आई डोंट फाइंड देम रूड। जितने भी लोगों से मैंने अभी तक इंटरेक्ट किया है, वैसे बहुत ज़्यादा लोगों से तो इंटरेक्ट किया ही नहीं है मैंने, बट जितने भी लोगों से किया है मैंने, स्पेशली इन ज़ीगन, आई फाउंड देम वेरी हेल्पिंग एंड वेरी स्वीट इन नेचर। वो आपको सामने से हेल्प ऑफर करते हैं अगर आपको ज़रूरत होती है तो। और आई विल जस्ट शेयर वन इंसिडेंस जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि दे आर वेरी हेल्पिंग इन नेचर। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी सुबह सुबह, मेरी सुबह की क्लास थी एंड वो क्लास लेनी बहुत ज़रूरी थी, तो मैं सुबह सुबह 9 बजे जा रही थी और आई फाउंड कि जो रोड्स थी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी क्योंकि स्नोफॉल हो रखा था और बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, इतनी ज़्यादा स्लिपरी थी कि आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी क्योंकि मैंने नॉर्मल शूज़ पहन रखे थे, तो मैं एकदम भी नहीं चल पा रही थी। तो मैं एक जगह पे खड़ी हो गई रोड के साइड में जाके, तो देयर वॉज वन मैन हु वॉज ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। दूसरी साइड से मेरी साइड में आया, उसने मुझे बताया कि रोड के बीच में से चलो, यू विल फाइंड इट ईजी टू वॉक। तो मैंने, और मेरे को रोड भी पकड़ के हाथ क्रॉस करवाया। आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। तब से मेरे को लगता है कि येस, जर्मन्स आर रियली गुड इन नेचर, जो कि मुझे लगा। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। और सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे जर्मन्स के साथ, तो अलग अलग कहानियाँ होंगी, बट पर्सनली आई फील दैट जर्मन्स आर रियली गुड। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। And the last and the final question is, am I liking the Germany and what are my plans of future? Like, am I going to stay here? और मैं मास्टर्स करने के बाद इंडिया चली जाऊंगी या कुछ दिनों बाद जॉब करके इंडिया चली जाऊंगी, तो मेरे पास अभी कुछ प्लान नहीं है। बट फर्स्ट क्वेश्चन था, एम आई लाइकिंग द जर्मनी? सो येस, आई एम लाइकिंग जर्मनी, क्योंकि जर्मनी अच्छी जगह है और लोग भी अच्छे हैं, बट यहाँ पे बस एक जो लैंग्वेज बैरियर है जर्मन का, वो थोड़ा है। तो यू हैव टू लर्न जर्मन टू बी हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो एक है। बाकी उसको हटा दे तो एक जो नेगेटिव फैक्टर विच आई कैन से इज लाइक डिजिटलाइजेशन, जो कि जर्मनी में बहुत ही गंदा है इन कंपेयर ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में डिजिटलाइजेशन इज लाइक ऑन अ टॉप नोच, तो वो जर्मनी में नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, तो बट स्टिल लाइक और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो येस, आई एम लाइकिंग जर्मनी। और रही बात प्लान्स की, तो आई डोंट हैव सच प्लान्स राइट नाउ, और मैंने अभी सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। आई हैव टू स्टे इन जर्मनी और आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। देयर आर नो प्लान्स। आई गेस दिस वॉज इट एंड दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन माय Instagram DMs. I will try to answer them by making another video. So let's wrap up this video and we'll meet you in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, and don't forget to subscribe my channel if you haven't done it yet. Okay, bye. Yes, you can do it. I introduce myself. My name is Neha and I am from Germany. Sorry.